So, regarding precipitation, we have in this unit, and then the measurement of the precipitation. So, let us start with the concept of the hydrology. As we all know, that water is very important for all our living organisms, animals, and the humans on our earth. For again, before moving further, I request you all to keep your notebooks open along with your pen, so that you will be able to note down some important things which will be always permanent in your mind from this subject. So, this hydrology or the importance of water is there since all the human beings are there on the earth since centuries, because the water is needed for the drinking purpose, for agriculture purpose, and for our day to day activity. Water is also called as, in Sanskrit it is called as the जीवन, or we can call it as the प्राण. तो पानी के बगैर हमारा कुछ होता नहीं है. तो इसलिए सालों से, हजारों सालों से, this question is there in the human's mind, that where from this water comes and where does it go? Why some of the water is salty and some is fresh? Some water can be drunk and some water is non-drinkable. Sometimes there is not enough water and sometimes there is too much of the water. And sometimes there is a scarcity of rainfall, and sometimes the rainfall is too much, flooding आता है वहाँ पे. So all these questions and answers related to water have been grouped together in this subject called as the hydrology and water resources, HWR. Now let us have the basic knowledge about how this word hydrology has evolved. कहाँ से आया भाई ये discipline hydrology? So it is formed by the two Greek words. दो Greek word है. एक का the one part of that is hydro and another is logos or the logy. So hydro means water and the logos or the logy means the science. So the science of the water is called as the hydrology. It is the science of water. And very importantly, this science deals with the occurrence. पानी कहाँ से आता है? Occurrence, circulation, how it moves on the earth and how it is distributed on the earth. So occurrence, circulation and distribution of water on the earth is being studied in the subject called as the hydrology. And where this phenomena takes place, ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये प्रक्रिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है. तो इसलिए ये whatever that occurs into the atmosphere of earth, that is the occurrence, circulation and distribution of the water, is being studied in this subject. A very good understanding of this hydrologic process is therefore very important for assessing or for finding out the quantity of the water resources, their management, how it is to be managed, conservation यानी उसको बचाए कैसे रखेंगे on global and regional scales. All of us up till now or before telling by me know what is the importance of the water. We have learned from many persons that the third world war may occur for the want of the water. तो पानी का महत्व इतना है, इसलिए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर असेसमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस. पानी के जो स्रोत है वो पानी के स्रोत की एसेस करने के लिए या उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए, पता करने के लिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट. नहीं तो पानी बहुत है, पानी कम भी है, लेकिन उसका बराबर कैसा यूज करते हैं वो नॉलेज. कॉन्जर्वेशन यानी बचाए रखना, कॉन्जर्वेशन ऑन ग्लोबल एंड रीजनल स्केल्स, यानी पूरे महाद्वीप के लिए और मेनली तो पहले हमारे घर से,
हमारे एरिया से, हमारे रीजन से, हाउ द वाटर इज टू बी कंजर्व्ड और वाटर इज टू बी प्रिजर्व्ड। पानी कैसे, जैसे हम पैसा बचा के रखते हैं, जैसे हम कोई हमारे घर में 6 महीने का खाना ला के रखते हैं, कोई अनाज ला के रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। इन द सेम वे हमें पानी अभी बहुत इजीली मिल रहा है, इसलिए उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है हमें, लेकिन आगे जाके है ना, अभी तो हमें खरीदना पड़ता है, कभी कभी 15 रुपए 20 रुपए की बॉटल हम खरीदते हैं। कारपोरेशन से बहुत सस्ते में मिलता है, हमारे महानगर पालिका, नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से। लेकिन जब खरीदते हैं तो 1 लीटर पानी 15 रुपए 20 रुपए में लेते हैं, और वही 10 रुपए में हमें 1000 लीटर पानी मिलता है हमारे कारपोरेशन से। इतना सस्ता कारपोरेशन देती है वही क्वालिटी का पानी। लेकिन धीरे धीरे अभी उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ रहा है, शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ द वाटर, फ्लड्स आर देयर। So engineering hydrology from our point of view, from civil engineering point of view, deals with estimation of the water resources. वाटर रिसोर्सेस में कितना पानी है, वाटर रिसोर्सेस कौन से, पानी के स्रोत कौन से, नदी है, बहुत सारे स्ट्रीम्स है, नालाज है, रिजर्वायर्स है, अंडरग्राउंड रिसोर्सेस है, जमीन के नीचे में भी है ना, मालूम है ना आपको, पानी सीपेज होता है जिसको हम मराठी हिंदी में पाजरना करके बोलते हैं। So water resources are there. So how much quantity is available in the water resources? That estimation is being done with the help of the hydrology. Studying the process, और ये resources के लिए जो भी hydrological processes है, जैसे precipitation है, evapotranspiration है, runoff and their interaction, है ना। precipitation है ना बरसात, rainfall, evapotranspiration है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, यानी पानी की सोलर रेज जो है, सन रेज, उसके कारण जो पानी की वाफ होती है उसको इवेपोरेशन करके बोलते हैं। एंड सम वाटर इज मूव्ड और गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम द प्लांट लीव्स, झाड़ जो रहते हैं उसके पत्तों में से भी कुछ पानी वातावरण में निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ऐसा बोलिए आप, तो उसको ट्रांसपिरेशन करके बोलते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया इवेपोट्रांसपिरेशन, है ना। मैं ये वर्ड के मीनिंग इस वक्त आपको बताता हूं, तो कहीं ना कहीं तो भी नोटबुक में लिखते रखते जाइए, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, आपकी जो भी लैंग्वेज है। नया वर्ड है इवेपोट्रांसपिरेशन, यह आपको मालूम भी होगा, लेकिन इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन यानी पानी की वाफ होना सन के माध्यम से, सूर्य से जो उष्णता रहती है उसकी। ट्रांसपिरेशन यानी जो झाड़ों के लीव्स रहते हैं, प्लांट के जो लीव्स रहते हैं, पत्ते रहते हैं, उसमें से जो पानी बाहर निकलता है उसको इवेपोट्रांसपिरेशन करके, उसको ट्रांसपिरेशन करके बोलते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन से जो पानी वातावरण में जाता है उसको इवेपोट्रांसपिरेशन। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, बरसात। रन ऑफ यानी जमीन के ऊपर से जो पानी बहता है, बरसात का पानी, उसको रन ऑफ करके बोलते हैं, है ना। बरसात का पानी जमीन पे गिरने के बाद में वो जहां पे उतार है, वो उतार से वो, और उसको जहां जगह मिलती है वहां से बहते जाता है, हम सब लोग देखते हैं, तो उसको रन ऑफ करके बोलते हैं। तो ये तीनों चारों प्रोसेसेस, और इसका खुद में क्या रिश्ता है, इंटरेक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। और आगे भी स्टडी ये विथ रिलेटेड टू दिस विल बी स्टडिंग ऑन द फ्लड्स, है ना। बहुत फ्लड्स आते हैं, नदी को पूर बोलते हैं मराठी में, तो फ्लड्स आते हैं। एंड ड्रॉट्स, ड्रॉट्स यानी अकाल, है ना। ये भी नया वर्ड है आपके लिए, DROUGST, ड्रॉट्स यानी अकाल। बहुत बार बारिश आती नहीं है, एक आधे 3-4 महीने बारिश बरसात में नहीं आई तो हमारे यहाँ पानी की समस्या हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं रहता, खेती के लिए पानी नहीं रहता, तो उसको ड्रॉट करके बोलते हैं, अकाल करके, जो मराठी में हिंदी में बोलते हैं। और यदि फ्लड्स और ड्रॉट्स आते हैं तो उन्हें कैसे हम संभाले, तो स्ट्रेटेजीज टू कॉम्बैट देम we will be studying in this subject called as the hydrology, a very important subject. Now we will be moving on to the next in this hydrology is the hydrologic cycle. ठीक है, ये एग्जाम में इसके ऊपर में शॉर्ट नोट्स आती है, आपका एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स एज यूजुअल सभी के ऊपर में रहेंगे, ठीक है ना।
तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल में हम समझ लेते हैं, बहुत इजी है, मैंने जैसे आपको बताया वाटर साइकिल वगैरह आप सब पढ़े ही है पहले. द सेम थिंग इज देयर, वेरी इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट न्यू टू यू. और मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट ही हमारे लिए नया नहीं है. जैसे अभी आजू बाजू हमारे यहाँ बरसात हो रही है, नदियों को फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं तो भी अच्छी खेती हो रही है, तो दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोलॉजी. ऑल दिस इज, this combination of this is hydrology. Only it is put into the technological or the scientific manner. वो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है और इसलिए हमारे सिलेबस में डाला है. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल यानी क्या है ये हम समझ लेते हैं. फ्रेंड्स, वी नो दैट वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन थ्री स्टेट्स. हम सब हमारे क्लास 1 से, पहली से लेके तो 12वीं तक के, और अभी इंजीनियरिंग में हम सबको मालूम है कि स्टेट्स ऑफ द वाटर आर 3, और वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. है ना. सॉलिड यानी बर्फ के स्टेट में पानी रहता है, लिक्विड यानी जो लिक्विड पानी जिसको बोलते हैं वो लिक्विड हो गया, और पानी की जब वाफ होती है तो वो गैसीय स्टेट में हो गया. So this is the property of the water, that it is the property of the water, that special property that it exists in 3 states. And when it moves from one state to another, सॉलिड से जब लिक्विड होता है, लिक्विड से जब गैस होता है, या गैस से जब लिक्विड होता है, या सॉलिड से जब लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड होता है, तो इट हैज गॉट ए टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट और मोशन. So therefore all these traits are has got the special property when they convert from one state to another, that is called as the property of the motion, or we can call it as they are in the state of the dynamic actions. है ना. जैसे डायनामिक का मतलब when it remains or it moves from one state to another, it has got the property of movement. एक जगह से दूसरे जगह वो मूव होता है, तो उसको डायनामिक एस्पेक्ट करके बोलेंगे हम कि पानी को प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन इट चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड और फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. जब ऐसे कन्वर्ट होता है तो इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that is called as it remains in motion. So that is called as the dynamic aspect of the water. And due to this dynamic nature of water, that is its motion when it changes its state, is responsible for, हम अभी, और यानी जैसे अभी सीधा स्टेटमेंट किया तो हम ऐसा भी उल्टा भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस movement of water or dynamic nature of the water can exist in 3 states. And this existence of water into these 3 states, due to its dynamic or the movement property, is being explained very well, or it is the cause of the hydrological process called as hydrologic cycle. है ना. सिंपल है बिल्कुल, कोई शब्दों का खेल कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं है कि पानी 3 स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसमें कुछ तो भी मूवमेंट या मोशन रहता है, उसको डायनामिक प्रॉपर्टी करके बोलते हैं. और इस डायनामिक प्रॉपर्टी के कारण ये जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल करके प्रोसेस है, तो ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल होती है. अभी क्या है भाई हाइड्रोलॉजिक साइकिल, तो वी नो दैट द वाटर, ये यहाँ पे आपके स्लाइड में आपको दिखता होगा, इसमें कुछ मीडिया या मैंने ऐसे डाला है कि वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज. है ना. पानी की जो स्रोत है, जैसे समंदर है, तालाब है, नदी है, तो यहां से पानी का इवेपोरेशन होता है, पानी वाप में कन्वर्ट होता है, भाप में, ड्यू टू द सोलर रेज. ओके. एंड दिस इवेपोरेटेड वाटर moves upwards, its density is less than the air, and therefore it moves upwards and forms the clouds. बादल बादल तैयार करता है ये पानी जो इवेपोरेट हो गया, it forms the clouds,
And when these clouds moves from one place to another, and the temperature reduces and the cooling occurs near the clouds, and some another matter, कुछ भी आगे भी क्यों रेनफॉल होता है वो आगे में हम समझेंगे टेक्निकल प्रोसेस. But these clouds then converts into the rains or the snowfall, and this falls on the earth and moves. Some water moves on the earth in the form of runoff. Some water percolates into the ground to recharge the groundwater, and again this process repeats. Then again the water reaches to the water body. एक तो जमीन के ऊपर से जब रन ऑफ का पानी नदियों से वगैरह बहता है तो वो समंदर में जाता है, जमीन के नीचे भी परकुलेट होता है, सीपेज या इनफिल्ट्रेशन करके बोलते हैं. आगे में हम ये सब वर्ड फिर से एक बार समझने वाले हैं अच्छे से. तो ये जमीन के नीचे से फिर से कुछ वेल्स कुएं में जाता है, कहीं ग्राउंड वाटर टेबल के माध्यम से फिर से तालाब में जाता है, नदी में जाता है, समंदर में जाता है, फिर से उसका सन के इससे इवेपोरेशन होता है. एंड फिर दिस साइकिल कंटिन्यूज. Again evaporation, formation of the clouds, movement of the cloud from one place to another with the help of the winds, temperature fall, cooling of the clouds converts into the water particle that is called as the rainfall or precipitation or snowfall, falls on the ground. Some converts into the runoff, some moves into the groundwater, यहाँ पे जैसे बताया है. And this cycle continues. This cycle is called as the hydrological cycle. ठीक है, this hydrological cycle is very important from the point of view of the availability of water on the earth. है ना, अभी यहाँ पे I have given some 10 or 12 components of the hydrological cycle. ये लिस्ट है ना, ये आपके मैं नोट्स देने वाला हूँ उसमें भी रहने वाली है. लेकिन जब मैं whenever I explain you in the class, if you could note it down, it is well and good. है ना, मैं जब बताता हूं तो कम से कम 2-3 मिनट तो स्लाइड रखता ही हूं. So hydrological cycle involves some 10 to 12 phenomena or 10 to 12 components. The first is the evaporation from the water body. है ना, evaporation. और ये सब हम ये जितने भी कंपोनेंट है ये वन बाय वन हम पढ़ने वाले. ये पूरे इसके ऊपर ही ये पूरा हमारा सिलेबस है जो आगे में हम पढ़ने वाले हैं. So evaporation from the water body. ये evaporation कैसा होता है, what is the scientific process involved in evaporation, we'll be learning later on. On the right side again a sketch of the hydrological cycle has been shown to you. तो right side में आपको दिखेगा कि ये water body है, ocean करके लिखा है, या ocean से evaporation होता है, water moves upwards, water vapor moves upwards, it forms the clouds. These clouds moves from one place to another with the help of the winds. हवा बहती है तो उसके साथ में क्लाउड भी बहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो हवा से हल्के रहते हैं, लेकिन विद द मूवमेंट ऑफ द एयर इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, इसमें ही क्लाउड मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हो गया. उसके बाद में ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एट दोज हाइट्स ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की ऊंचाई के ऊपर में वातावरण जब ठंडा हो जाता है तो ऑल दिस क्लाउड्स गेट्स कन्वर्टेड, क्लाउड्स विच आर मेड अप ऑफ द वाटर वेपर, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर पार्टिकल. फिर से चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द गैस टू द लिक्विड, और मे बी बहुत कूलिंग है तो वो बर्फ में भी कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर यदि बहुत कम है तो वो लेवल पे. एंड दिस इज कॉल्ड एज द for change of the state. And when they come close together, ये सब वाटर पार्टिकल जब बहुत पास में रहते हैं तो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल से बड़े बड़े वाटर पार्टिकल, या छोटे छोटे स्नो पार्टिकल से बड़े बड़े स्नो पार्टिकल बनना चालू हो जाता है. इसको बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ द वेपर इनटू द सॉलिड और द लिक्विड स्नो और द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन. So condensation is one of the process. After condensation, as the water particles become heavier than the air particle, due to the gravitational force,
this water particle moves towards the earth, or the snow particle moves towards the earth due to the gravitational force, which is called as the precipitation. ठीक है, इसको प्रेसिपिटेशन करके हमारे हाइड्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसको हम हमारे नॉर्मल इसमें रेनफॉल, स्नोफॉल या हेल स्टॉर्म वगैरह करके बोलते हैं. सो प्रेसिपिटेशन इन जनरल from our point of view is the rainfall. So this precipitation takes place next, and when this precipitation or rainfall takes place, before reaching to earth, जमीन के ऊपर गिरने के पहले कहीं तो भी बड़े बड़े झाड़ है बीच में, बहुत प्लांट्स है, ट्रीज है, बिल्डिंग्स है ना. So these are the obstructions for the water particle for the rainfall from atmosphere to the earth surface, and therefore some part of this rain or precipitation is being obstructed and being absorbed by this plants. झाड़ है बीच में, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, तो उसको इंटरसेप्शन करके बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्शन. सो before reaching to the earth, the water, the precipitation or the rainfall is being intercepted, is being obstructed by the plants, its leaves and the buildings, etc. So it is called as the interception. So some part of the water or rainfall is being used in the interception. Some part of the rainfall which falls on the ground, जमीन के ऊपर जो गिरता है, तो प्लांट्स वगैरह अपने के ग्रोथ के लिए कुछ पानी एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स. वो अपने जो रूट्स रहते हैं उसमें से प्लांट अपने ग्रोथ के लिए कुछ पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और वो पानी प्लांट के जो स्टेम्स रहते हैं, जिसको बूंदा करके बोलते हैं, और प्लांट्स के जो लीव्स है उसके माध्यम से प्लांट लीव्स में जाते हैं. दैट वाटर इज यूज्ड for the photosynthesis in presence of the sun and the water in the plant leaves and the chlorophyll. तो ये सब क्या करते हैं कि in this process this photosynthesis takes place, and some water is again left through the plant leaves. कुछ पानी plant leaves से भी atmosphere में जाता है. That is called as the transpiration. Then the next is infiltration. जो पानी जमीन के ऊपर गिरता है, that quantity of water which falls on the earth surface, on the soil surface, it first saturates the soil particles. जमीन बरसात गिरने के पहले जमीन पूरी सूखी रहती है, सॉइल रहती है, सॉइल पार्टिकल है उसमें, है ना. आप शायद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 पढ़े हैं, तो आपको GT1 में कुछ ना कुछ तो भी, या अभी होगा आपको GT1. तो दैट इट डील्स विद द इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स. जैसे ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, तो सॉइल मैकेनिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंजीनियर्स. सो सॉइल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी मटेरियल. सो दोस सॉइल पार्टिकल के बीच में भी कुछ वॉइड्स रहते हैं, उसको सॉइल पोर्स करके बोलते हैं. तो वो सॉइल पोर में ये पूरा जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन का वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल पोर्स फर्स्ट, एंड देन विद द ग्रेविटी दिस पार्टिकल परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड. फिर वो जमीन के अंदर में धीरे धीरे सीपेज होता है, परकोलेट होता है. ठीक है, उसको इनफिल्ट्रेशन करके बोलते हैं. सो आफ्टर द सरफेस ऑफ द सॉइल इज बीइंग सैचुरेटेड, आफ्टर द सरफेस ऑफ द अर्थ which is made up of the soil is being saturated by the water, then some water infiltrates or percolates into the ground and reaches to the groundwater flow or groundwater resources. जमीन के नीचे में जो भी पानी के स्रोत है उसको ये जाके मिलता है with the help of the infiltration process. And some water or maximum quantity of water after infiltration process starts or saturation of the water soil at the surface completes, it moves through the over the ground surface
विद द स्लोप, जमीन के ऊपर से भी छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है, छोटे छोटे जो नाले हैं, जो नदियां है, उसमें से कुछ पानी बहता है जिसको हम रन ऑफ करके बोलते हैं. सो दैट इज द नेक्स्ट इज रन ऑफ और स्ट्रीम फ्लो, है ना. इसको वर्ड ही दिया है, रन ऑफ और स्ट्रीम फ्लो. आप अभी धीरे धीरे सबका यू मस्ट हैव सम डिफरेंशिएशन इन योर माइंड. आप धीरे धीरे समझते जाइए कि ट्रांसपिरेशन क्या है, इनफिल्ट्रेशन क्या है और रन ऑफ क्या है. रन ऑफ यानी जो जमीन के ऊपर से जो पानी बहता है ना. जब जमीन पूरी गीली हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, और उसके बाद में कुछ पानी जमीन के नीचे जाता है, उसको हमने इनफिल्ट्रेशन करके बोला है. और कुछ जो पानी है, दैट वाटर फ्लोज ओवर द ग्राउंड, ओवर द सॉइल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द रन ऑफ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रीम फ्लो. और ये जो पानी है, ये जमीन का जैसा स्लोप होता है, वो स्लोप के हिसाब से इट फॉलोज द स्लोप, जमीन का जैसा उतार है, बिकॉज वाटर फ्लोज विद ग्रेविटी. पानी ग्रेविटेशनल फ्लो से बहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहता है, तो उसके लिए उतार रहना जरूरी है, स्लोप रहना, तो उसको रन ऑफ करके हम बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द रन ऑफ, इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रीम फ्लो. सम वाटर विच हैज इनफिल्ट्रेटेड इनटू द ग्राउंड, जो कुछ पानी जो जमीन के अंदर में परकोलेट हुआ है, सीपेज हुआ है, तो वो जो परकोलेट हुआ है पानी, वो लगभग वो नीचे नीचे जाता ही है परकोलेट होके, लेकिन अबाउट 1 to 2 meters फ्रॉम द अर्थ सरफेस. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. फ्रॉम 1 to 2 meter बिलो द अर्थ सरफेस, जमीन के ऊपर जैसी टोपोग्राफी है ना. जमीन के ऊपर यदि उतार है, जमीन के ऊपर यदि चढ़ाव है, तो चढ़ाव से उल्टा पानी कभी जाता नहीं है. लेकिन जमीन के ऊपर यदि उतार है, तो उतार से जैसे पानी रन ऑफ जाता है, वैसे सम वाटर विच हैज इनफिल्ट्रेटेड इनटू द ग्राउंड also follows the topography of the soil. Please listen very carefully. The water which has infiltrated, जो पानी जमीन के नीचे परकोलेट हुआ है, तो उसमें का कुछ पानी ये जमीन के नीचे से जैसे जमीन के ऊपर उतार है, उस उतार को, उस टोपोग्राफी को फॉलो करता है, और उस हिसाब से वो जमीन के नीचे से बहता है. और वो क्या होता है, बाद में जमीन के नीचे से बहते बहते वो इट रीचेस टू सर्टन वाटर बॉडी लाइक ए रिजर्वायर, ए रिवर और ए ओशन एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये जो पानी जमीन के नीचे से जो बह रहा है, ये एक हो गया. एक जो पानी जमीन के ऊपर गिरता है, उसको हमने रन ऑफ करके बोला. सो द वाटर विच फॉलोज, विच फ्लोज ओवर द सॉइल इज कॉल्ड एज द रन ऑफ. The second part which flows below the soil but with the topography of the ground is called as the subsurface runoff, or it is called as the subsurface flow. है ना. नोट करते जाइए कहीं तो भी. Runoff and after the deep percolation, है ना. Runoff, then percolation, and this or the infiltration, and again the some part of that infiltrated water follows the topography of the ground, that is called as the subsurface flow or subsurface runoff, it is called as. And again some water again percolates deep into the ground. कुछ पानी और नीचे नीचे जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और जमीन में सॉइल में जो वॉइड्स रहते हैं, जो पोर्स रहते हैं, उसके कारण वो नीचे नीचे परकोलेट होता है. एंड इट रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस. जमीन के नीचे जाते जाते वो क्या होता है कि जमीन के नीचे जो जहां जहां पे पानी के स्रोत है, तो उसमें वो पानी बढ़ाने का काम करता है ना. नीचे नीचे पानी जाएगा, और वो कब तक जाएगा, जब तक उसको कहीं रुकावट नहीं है, कहीं हार्ड रॉक नहीं है, या कहीं ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसमें से अभी वो परकोलेट नीचे जा नहीं सकता, जिसको हम इम्परमिएबल मटेरियल करके बोलते हैं. ठीक है. सो सम वाटर reaches up to that impermeable strata, and again जैसे नीचे अभी नहीं जा सकता, तो वो फिर से इसके ऊपर जमा होता है, और वो वाटर ऊपर ऊपर आता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर टेबल करके बोलते हैं. हम पढ़ने वाले हैं आगे में. ठीक है. तो जैसे अभी हमने इनफिल्ट्रेशन पढ़ा, रन ऑफ पढ़ा, डीप परकोलेशन होने के बाद में द वाटर परकोलेटेड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट.
One part is called as the subsurface flow or subsurface runoff, and the another part is called as the groundwater flow. है ना, थोड़ा मैंने ज्यादा समय इसके ऊपर इसलिए दिया है कि ये सब फिनोमिना आपके ध्यान में आना चाहिए. आज ध्यान में आया तो आपको सब्जेक्ट आगे समझने में और अच्छा होगा. So I will again repeat that in this hydrological cycle, that is the movement or dynamic property of the water from water body, evaporation, then moving in, converted into the clouds. The water vapor moves upwards, clouds, cloud formation, then condensation due to the cooling of the atmosphere at higher altitude. ऊपर में ज्यादा ठंडा रहता है तो इसलिए कंडेंसेशन, वाटर पार्टिकल्स कम टुगेदर, टर्म पास में आते हैं, कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन होने के कारण प्रेसिपिटेशन होता है, बरसात गिरती है, या ज्यादा ठंडा हुआ तो बर्फ भी गिरता है. कल किसी ने पूछा था वैसे गारपीट करके जिसको बोलते हैं, हेल स्टॉर्म, या जैसे हिमालय में वगैरह होता है तो स्नोफॉल करके बोलते हैं. आगे में हम पढ़ने वाले हैं, वो सब समझने वाले, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन करके बोलते हैं. नॉर्मल हमारे हाइड्रोलॉजिकल प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स रेनफॉल, इट इंक्लूड्स हेलस्टॉर्म, it includes snowfall also. Some water is being intercepted, precipitation water जो है is being intercepted by the plants, by the buildings etc. in between, यानी बादल और जमीन इसके बीच में जो पानी कहीं रोका जाता है उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें भी कुछ पानी लॉस होता है. Some water is transpired through the plant leaves. प्लांट लीव्स में से कुछ पानी निकल जाता है, कुछ पानी जमीन के नीचे जाता है, इसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं. सम वाटर आफ्टर द सॉइल सैचुरेशन एट द सरफेस टेक्स प्लेस, तो सम वाटर फ्लोज above the soil, that is called as the runoff or the stream flow. Some water percolates into the ground, is divided into two parts. One is called as the subsurface flow and another is called as the groundwater flow. Subsurface flow is nothing but the flow of water below the ground surface but following the topography. है ना, आप में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि जब धूपकाले में एखादे नदी पे हम जाते हैं, बहुत बार होता है ऐसा कि धूपकाले में नदी में पानी नहीं रहता है, तो वहां जाते हैं और वहां पे गड्ढा किया हमने नदी में, तो नीचे में हमें पानी लगता है. So this is that subsurface flow, that water which has percolated into the ground. It follows the topography of the ground and it flows below the ground surface. That is called as the subsurface flow. Okay, and the last one is the groundwater flow. ठीक है, again this hydrological cycle has been very well explained in this photograph or the sketch. Sun hits the ocean, one number it is shown here. 2 number is ocean water evaporates, rises into air. 3 number is water vapor cools and condenses to become droplets, which forms clouds. If enough water condenses, then it falls drops on the ground in the form of the rain and snow. Some water is collected in the ground wells etc. and the rest flows through the rivers back into the ocean. So this cycle continues. This is called as the hydrological cycle. Again, with the help of the another sketch or the photograph image, it is being explained. The importance of the hydrological cycle for all of us is from the point of view of our agriculture. हमारी खेती पूरी बरसात के ऊपर डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है. फॉरेस्ट्री, हमारे जंगल वगैरह, अच्छी बरसात आई है ना, आप सबको मालूम है आजकल क्लाइमेट चेंज और सभी इसमें forest has got very importance. These forests or the trees or the plants are nothing but the natural coolers. They are natural air conditioner. So forestry के हिसाब से hydrological cycle important है. हमारी जो जियोग्राफी है, जो जमीन का क्वालिटी है, so that also you must have learnt in your geology, that is the erosion, transportation of that eroded material from one place to another etc. So geography also has got been impact
of this hydrological cycle. ओवरऑल एग्रीकल्चर, रेनफॉल, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी और सभी तरफ यदि पानी की उपलब्धता भरपूर है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी रहती है ना। हमारे भारत में बरसात अच्छी हुई तो ऑल, क्योंकि सब खेती अच्छी होगी, लोगों के पास पैसा रहेगा, तो ओवरऑल परचेसिंग पावर अच्छी रहेगी, इकोनॉमी अच्छी रहेगी। सोशियोलॉजी, समाज में वातावरण अच्छा रहेगा। यदि सभी तरफ टंसाई है, जैसे मैंने जब भी बताया वैसे ड्रॉट है, फैमिन है, फैमिन, उसको ड्रॉट को दूसरा वर्ड फैमिन भी है। ड्रॉट यानी अकाल, DROUGST। द अनदर वर्ड इज FAMINE, फैमिन। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी, हमारा समाज जो है ये भी ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर डिपेंड है। और ये सब अच्छा है तो फिर पॉलिटिकल सीन, हमारा राजकीय जो भविष्य ये है वो राजकीय वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलॉजी के इंजीनियरिंग एप्लीकेशन अभी आपके ध्यान में आ गए। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या इंपॉर्टेंट है ये आपके ध्यान में आ गया। अब ये हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में क्या है भाई, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हाइड्रोलॉजी? फॉर द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है ना, मैं पहले दिन से बता रहा हूं आपको कि जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है तो वो दोज आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी। वो कैसे है हम आगे में पढ़ते हैं, अभी तो हम सिर्फ इसका कैसे इसका एप्लीकेशन है ये भी हम पढ़ने वाले ही है, तब आपको और अच्छे से ध्यान में आएगा। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि द हाइड्रोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स लाइक वाटर सप्लाई, जैसे डैम और रिजर्वायर है, पानी सप्लाई जहां से होता है ना। हमारे आप सबको मालूम है कि हमारे जितने बड़े बड़े शहर है, टाउन्स है, आपके विलेजेस है, तो सब तरफ कहीं ना कहीं तो भी वाटर रिसोर्सेस से पानी आता है। नदी से आता है, नाले से आता है, तालाब बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। वो लेकिन वो कब कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द डैम? How will you design and construct some water supply scheme? By knowing only the how much quantity of water is available into that stream, कितना पानी उपलब्ध है, और वो उपलब्धता निकालने के लिए ये हाइड्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस है ना। जैसे हमारा पगार की उपलब्धता, हमारी जो सैलरी है उसके हिसाब से बैंक में कितना जमा है वो हमारे पास रहेगा, वैसे पानी की उपलब्धता जो है, जो पानी का बैंक बोलेंगे, that can be found out with the help of the knowledge of hydrology. Naturally, storage of the water helps for the water supply for the drinking or agriculture purpose. Hydropower, hydroelectric power जिसको बोलते हैं, पानी के माध्यम से बिजली का उत्पादन। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, खेतों को पानी देना। एंड द ड्रेनेज मीन्स वो कैचमेंट एरिया भी आगे में पढ़ने वाले हैं उसको, डेवलपमेंट। फ्लड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड जो आते हैं, फ्लड से बहुत डैमेजेस होते हैं, तो फ्लड कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज नेविगेशन। नेविगेशन यानी पानी में से ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमें रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन रेल से मालूम है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, हवा का ट्रांसपोर्टेशन है, एरोप्लेन, और हमें जो पता है वो नेविगेशन समंदर में से वगैरह होता है। तो बड़ी बड़ी नदियां या बड़े बड़े कैनल्स यदि हमने कंस्ट्रक्ट किए तो उससे भी हम नेविगेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो उसको नेविगेशन के लिए भी ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है। कोस्टल वर्क, समंदर के किनारे जो बांधकाम है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वेरियस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वर्क्स लाइक द डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, कल्वर्ट्स। सैलिनिटी कंट्रोल, बहुत बार जैसे हमारे अकोला जिला में कहीं तो भी पूर्णा रिवर है, तो वहां पे कुछ पार्ट जो है वो सलाइन है, सैलिनिटी है ना, वहां पे सैलिनिटी है, नमक बहुत है, तो उसके कंट्रोल के लिए जमीन में सॉल्ट है। और रिक्रिएशनल यूज ऑफ द वाटर, यानी बहुत बार हम खिंडसी तालाब पे पिकनिक के लिए जाते हैं, अंबाझरी जाते हैं, फुटाड़ा जाते हैं, और कहीं डैम पे जाते हैं। So for that purpose, the knowledge is very important. This is the sketch of the hydrologic cycle from your पुनमिया book, है ना। यहाँ पे आज हम रुकते हैं, ठीक है। Tomorrow we will start about the information about the catchment area or the drainage basin.